اقوامی مذہبی آزادی رپورٹ پر ہندوستان کے وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں مذہبی آزادی کو آئینی حق حاصل ہے۔ شہریوں کے آئینی حقوق پر تبصرہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے سیکولر ملک ہونے پر فخر ہے۔ ہم سب سے بڑی جمہوریت ہیں اور ہمارا ملک مختلف انواع تہذیب و ثقافت کا مرکز ہے۔ واضح ہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے مذہبی آزادی پر ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں ہندوستان میں اقلیتوں کی مذہبی آزادی کی منفی رپورٹ شائع کی گئی ہے۔ رپورٹ میں لنچنگ اور ہندو شدت پسندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوک سبھا الیکشن کے بعد بی ایس پی سپریمو مایاوتی پارٹی میں بڑے بدلاؤ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مایاوتی نے الیکشن کے بعد نئے طور سے لاہمل بنانے کے لیے اور بی ایس پی میں بڑی تبدیلی کے لیے پارٹی کی اہم میٹنگ چل رہی ہے۔ میٹنگ میں قومی اور ریاستی سبھی عہدیداروں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میٹنگ میں ملک بھر میں پارٹی کو توسیع دینے کے لیے بھی لاہمل تیار کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی یو پی کے امیٹھی دورے پر ہیں۔ اسمرتی ایرانی مختلف ترقیاتی منصوبوں کے تعلق سے افسران کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہیں۔ میٹنگ کے بعد وہ معذور طلبہ کو ٹرائی سائیکل بھی تقسیم کریں گی۔ اس پروگرام کا انعقاد امیٹھی کے ضلع کلکٹریٹ میں منعقد کیا گیا۔ انڈین آرمی کے میجر جنرل سبھاش شرن نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ میرٹھ زون کے کرنل کلدیپ کمار اور دیگر فوجی افسران بھی موجود تھے۔ میجر جنرل کے دارالعلوم پہنچنے پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ میجر جنرل سبھاش شرن نے انڈین فوج کا اعزازی تمغہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی کی خدمت میں پیش کیا۔ میجر جنرل نے کہا کہ دارالعلوم کو دیکھنے کی تمنا عرصہ دراز سے تھی۔ میجر جنرل نے مزید کہا کہ دارالعلوم دیوبند جیسے اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے طلبہ کو فوج میں امام و مؤذن کے طور پر بھرتی کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج میں مذہبی رہنماؤں کا مرتبہ بلند ہے۔ پٹنہ میں حکومت بہار کی جانب سے 2 روزہ اردو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا مقصد اردو کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے تاکہ اردو کی بہتری کے لیے بہتر اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ واضح ہے کہ کانفرنس میں اردو کے فروغ کے لیے لاعمل تیار کیا جائے گا۔ کانفرنس میں ملک بھر کے شعراء نے بھی شرکت کی۔ بہار کے وزیر تعلیم کرشن نندن ورما نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ اور محفوظ عالم ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے پٹنہ سے راست جڑے ہوئے۔ محفوظ، بہار کی ہم بات کریں، اردو کو لے کر اکثر کئی خبریں آتی رہیں لیکن اردو کی جو ہے ایک طرح سے تحریک بھی دیکھنے کو ملتی رہی۔ کس طرح کی تبدیلیاں بہار میں اردو کو لے کر کرنے کی کوشش سرکار کی طرف سے دیکھی جا رہی ہے اس کانفرنس کے ذریعے اگر ہم بات کریں؟ دیکھیے جیلانی، اردو کانفرنس یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور ظاہر ہے یہاں سے ایک میسج دینے کی کوشش اردو ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے ہے کہ اردو کی صحیح صورتحال کیا ہے اس کو پتہ لگایا جائے اور اس سلسلے میں حکومت کو باخبر کیا جائے تاکہ حکومت اس سلسلے میں کام کرے۔ اردو دوسری سرکاری زبان ہے بہار کی، لیکن اردو کی صورتحال کتنی اچھی ہے اس بات سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بہار میں 72,000 سرکاری اسکول ہے اور آدھے سے زیادہ اسکولوں میں اردو کے اساتذہ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ایک بڑا چیلنج ہے کہ اردو کے طلبہ نہیں ہوں گے، اردو کی پڑھائی نہیں ہوگی تو پھر کیا اردو زبان باقی رہے گا؟ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اور یہاں پہ لوگ وہ سوال کھڑا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کئی لوگ ہیں۔ مولانا مظہر الحق یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب ہیں۔ اعجاز صاحب، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں، کیا کہیں گے؟ اردو کی صورتحال بہار میں کیا ہے آپ کے حساب سے؟ ایسا ہے بھائی کہ آپ نے تو ایک اشارہ کیا اسکول میں ٹیچروں کی عدم دستیابی کی طرف، یہ مسئلہ تو ہے، لیکن میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھتا ہوں کہ اردو ٹیچر جن اسکولوں میں ہیں وہاں اگر لڑکے نہیں جا رہے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ لڑکے ہونے چاہیے، ٹیچر بھی ہونے چاہیے۔ تو اگر آدھے اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہیں تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان اسکولوں میں ٹیچر بھیجے۔ لیکن جہاں لڑکے نہیں آ رہے ہیں، میں ایسے بھی لوگوں سے ملتا ہوں کہ جہاں ٹیچر اردو کے ہیں
नाम लेना किसी का मुनासिब नहीं है, मगर वहाँ लड़के नहीं आ रहे हैं। यानी ये एक बड़ा सवाल है जिलानी, जैसा कि आपने सुना, इस प्रोग्राम के जरिए ये बताने की ये भी कोशिश की जा रही है कि लोग खुद भी बेदार हों, सिर्फ हुकूमत के ऊपर जो है इल्जाम लगाकर अपने आप को बचे नहीं, बल्कि उर्दू की तरक्की के सिलसिले में खुद भी बेदार हों। कई बार ऐसा देखा गया है कि उर्दू जबान के सिलसिले में बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग भी उर्दू जबान को लेकर और उसकी तरक्की को लेकर संजीदा नहीं होते हैं। यहाँ डॉक्टर रेहान गनी साहब हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं। रेहान साहब, आप क्या कहेंगे, उर्दू को करीब से आपने देखा इस पूरे सूबे में, क्या सूरत हाल आपके हिसाब से है? देखिए, बिहार में उर्दू की सूरत हाल बहुत अच्छी है, हुकूमत काम कर रही है। ये जो 2 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से हो रही है, ये पैगाम देने के लिए हो रही है कि हुकूमत क्या कर रही है उर्दू को फ़रोग़ देने के सिलसिले में। कल हमने जो इफ्तिताही इजलास में शरीक हुए और वो देखा, जो मंजर देखा, तो एक अजीब खुशी की कैफियत इसलिए तारी हो गई कि वहाँ जो गैर मुस्लिम आला अफसरान, खातून जो है ना पुलिस एहलकार, वो लोग, उन लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की उर्दू डायरेक्टरेट के लर्निंग उर्दू कोर्स में, और बहुत अच्छा तलफ़ुज़ उनका उर्दू का, और उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमने मेरा तलफ़ुज़ उससे सही हुआ, हमने उर्दू सीखा, और उर्दू डायरेक्टरेट के जो टीचर, उर्दू डायरेक्टरेट की कोशिश अच्छी है, आप ये कहना चाह रहे हैं, और यहाँ से लोग जो है सीख रहे हैं। महफूज, सवाल ये है, जिस तरफ आपने इशारा किया था, स्कूल में टीचरों की कमी है, लेकिन ये भी सवाल है कि स्कूल में तलबा कितने हैं, बच्चे कितने हैं। कहीं होता है कि 5 बच्चे 10 बच्चे एक क्लास में होते हैं, एक टीचर की जो है वहां पर मांग होती है, और कई रियासतों में हमने इस तरह से देखा कि स्कूल में स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, ये कोशिश नहीं होती। दूसरा, जहां कम है उसको मर्ज किया जाए। तो ये जो तकनीकी चीजें हैं, सरकार इसको क्या वाकई देख रही है, या सिर्फ एक मुतालबा सरकार पर हमेशा तनकीद करना कि हमें टीचर दीजिए, उस्ताद दीजिए? लेकिन ये भी तो स्कूल्स की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट्स की, कि कितने तलबा हैं, कितने उर्दू वाले हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, इस पर भी ध्यान देने की अब जरूरत है। वहां जो मेहमान मौजूद हैं, माहिर तालीम है, जाहिर है वो इस बारे में बात कर सकते हैं। देखिए जिलानी, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपका है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे खुद बच्चे नहीं होते हैं। जाहिर है उस पर हुकूमत को इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं है। यहाँ कई यूनिवर्सिटी जैसी हैं बिहार में जहां उर्दू का शोबा नहीं है। जब बात हम लोग वाइस चांसलर से करते हैं कि उर्दू का शोबा क्यों नहीं है, हुकूमत से करते हैं, तो ये जवाब आता है कि उर्दू पढ़ने वाले बच्चे आला तालीमी इदारों में नहीं आ रहे हैं। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि आला तालीमी इदारों में बच्चे कहाँ से आएंगे जब तक कि इब्तदाई स्कूलों में वो उर्दू से पढ़कर फारिग होकर जब आएंगे नहीं, तो फिर आला तालीमी इदारों में वो कैसे पहुंचेंगे? तो ये एक सवाल है कि जहां जिन इदारों में बच्चे नहीं हैं, उन इदारों में फिर बच्चे कैसे पहुंचेंगे? उर्दू के सिलसिले में उर्दू बाकी तब रहेगा जब उर्दू में लोग पढ़ेंगे, उर्दू बच्चे पढ़ेंगे। क्या कहेंगे मुख्तसर में? देखिए, इसमें सवाल यह है कि उर्दू डायरेक्टरेट के ज़ेर असर जो अब ये फंक्शन है, तो उर्दू डायरेक्टरेट तो बस यही एक इदारा है इस वक्त बिहार में। नहीं, हमारा सवाल उर्दू डायरेक्टरेट के अलग भी है। आप पूरे मुद्दे पे आइए एकदम। एक मिनट। नहीं, तो इसमें तो अभी जितनी जगहें खाली हैं बिहार में उर्दू की, चाहे वो प्राइमरी सतह हो, सेकेंडरी सतह हो, अब बतौर ख़ास यूनिवर्सिटी सतह हो, चूँकि मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, तो जैसे बिहार यूनिवर्सिटी को फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ अभी 78 जगह हैं उर्दू की, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 टीचर काम कर रहे हैं। यानी आपने सुना 78 जगह है और 11 टीचर काम कर रहे हैं, तो जाहिर है एक बड़ा मसला है। उर्दू डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर इम्तियाज अहमद करीमी साहब हमारे साथ हैं। करीमी साहब, आप बताएं कि इस प्रोग्राम के जरिए, शानदार प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, इस प्रोग्राम के जरिए क्या बुनियादी तौर पे मैसेज आप देना चाह रहे हैं लोगों को उर्दू के फरोग के सिलसिले में? जी, बुनियादी पैगाम तो यही है कि हम अपने बच्चों को उर्दू भी पढ़ाएं, तालीम याफ्ता बनाएं, और साथ साथ अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू ज़रूर पढ़ाएं। जब क्लास 1 से और क्लास 8 तक के बच्चों का हम लोग सर्वे कराया, तो उसमें 70% जो बच्चे हैं वो उर्दू सब्जेक्ट नहीं रखे हुए हैं, सब्जेक्ट के तौर पर भी नहीं रखे हुए हैं। तो यहाँ मसला है टीचर नहीं है। टीचर नहीं है तो मज़ामीन बदल लेते हैं स्टूडेंट, ये भी एक बड़ा मसला है। नहीं, टीचर है भी, तो वो टीचर भी चाहते हैं कि वो एक ही मजमून हिंदी पढ़ाए और सोशल साइंस पढ़ा दे, और उर्दू पढ़ाने की जहमत न उठानी पड़े, और गार्जियंस भी इस तरफ तवज्जो कम दे रहे हैं।
तो तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तक कि अपने बच्चों को हम हिंदी उर्दू पढ़ाने के लिए आगे नहीं आएंगे, इस मसले का कोई हल नहीं हो सकता। जाहिर है यानी कि लोगों को खुद भी बेदार होने की जरूरत है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ जिलानी ये भी है कि बहुत सारे स्कूलों में तलबा को वक्त पे किताबें दस्तयाब नहीं होती है। हुकूमत ये दावा जरूर करती है और तमाम जो इदारे हैं हुकूमत की ये दावा जरूर करते हैं कि उनको किताब दस्तयाब कराया जाएगा वक्त पे, लेकिन वहां पहुंचता नहीं है। असातिज़ा की जगह बरसों से खाली है, आपने सुना, तो कई सारे मसाइल हैं और जाहिर है जब तक तालीम का इंतजाम नहीं होगा ये मसला बरकरार रहेगा कि उर्दू का फरोग कैसे हो। अब इस तरह के प्रोग्राम में उर्दू कॉन्फ्रेंस जिस तरह से वहाँ डायरेक्टरेट के जिम्मेदार आपके साथ हैं, जब कई रियासतों में एकेडमीज है, डायरेक्टरेट है, वो एक स्कूल को एक टीचर अपने तौर पर देती है। सरकार का अपना शोबा तालीम का वहां पर है, वजीर तालीम जब वहां है तो उर्दू के लिहाज से या माइनॉरिटीज के जो शोबे वहां काम करते हैं वो उर्दू का एक टीचर सरकारी स्कूल में अपने तौर पर दे। और कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर प्राइवेट स्कूल्स में भी जो है टीचर मुहैया करा रही है उर्दू एकेडमीज। तो क्या ये बिहार में नहीं हो सकता, जब उर्दू वाले काफी पढ़ने वाले हैं बिहार में? ऐसा नहीं है। देखिए, बिहार उर्दू एकेडमी की तरफ से ये कोशिश एक बार की गई थी कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहां पे उर्दू के टीचर नहीं है और उर्दू आबादी का एलिट क्लास का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, जो इस समाज का दिमाग समझा जाता है कि पढ़कर वो निकलेगा और उर्दू जानेगा तो इस सोसाइटी के लिए और उर्दू आबादी के लिए कुछ करेगा, वहां टीचर मुहैया कराई जाए। एकेडमी ने कोशिश किया लेकिन नहीं करा पाए। एजाज अली अरशद साहब से हम बात करेंगे। आपका ताल्लुक उर्दू एकेडमी से भी रहा है, आप वाइस चेयरमैन रहे हैं। इस सिलसिले में कोशिश जो है क्या की गई कि अपने सतह पे भी उर्दू इदारे जो है टीचर मुहैया कराएं ऐसे स्कूलों में? ये तो बहुत ज़रूरी था और हम लोगों ने बिहार उर्दू एकेडमी के वसीले से चंद जो अहम स्कूल हैं पटना के अंग्रेजी मीडियम स्कूल, उनमें उर्दू का टीचर देने की कोशिश की थी। कुछ प्राइवेट लोगों ने भी अपने तौर पर स्कूल के एक टीचर का सैलरी देने का वादा किया था। ये कोशिश कामयाब हुई, आपको लगेगा कि कामयाब नहीं हुई, लेकिन ये कोशिश कामयाब हुई। मगर हमारे अपने ज़राए हैं, हम पटना के ही 2-3 स्कूलों में दे चुके। अब अगर ऐसी कोशिश की जाए तो नया जो आइन बन रहा है उर्दू एकेडमी का, उसकी कमेटी में भी मैंने ये बात रखवाई है और ऐसा लगता है कि हुकूमत इसके लिए फंड देगी कि एकेडमी के दायरे अमल में ये चीज़ भी रहेगी। चलिए, एकेडमी के दायरे अमल में ये चीज रहेगी। जिलानी, एक चीज बताना चाहेंगे डॉक्टर रेहान गनी साहब से, आपने एक बार मुद्दा उठाया था उर्दू कमीशन का कि उर्दू के लिए एक कमीशन बनना चाहिए और वो कमीशन तमाम चीजों को देखे ताकि उर्दू की का मसला जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी हल हो और अवामी सतह पे भी हल हो। क्या हुआ उस सिलसिले में, क्या मुतालबा था? बेसिकली हमारा मुतालबा ये था कि बिहार में जिस तरह से माइनॉरिटी कमीशन है, जिस तरह से और दूसरी जानते हैं 15 निकाती नफाज कमीशन है, 20 निकाती नफाज कमेटी है, उसी तरह से बिहार में सरकारी सतह पर उर्दू का नफाज किस तरह से हो रहा है इसका जायजा लेने, उसकी निगरानी करने के लिए उर्दू नफाज कमीशन हुकूमत कायम करे। ये तजवीज़ रखी गई है, लेकिन ये तजवीज़ अभी सर्द खाने में है। हमको लगता है कि इसके लिए प्रेशर बनाने की जरूरत है। उर्दू कमीशन अगर बनता है तो कुछ फायदा उर्दू को हो सकता है। जिलानी, आपको एक चीज और भी बताना चाहेंगे कि आला तालीमी इदारों में सूरत हाल वाकई में क्या है? ये नूर साहब, आइए आगे आ जाइए। आपने जो है हाल में पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया, अच्छे नंबरों से पास किए। क्या आप बता सकते हैं कि आला तालीमी इदारों में बच्चे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? मुश्किल क्या है लोगों की? उर्दू की आला तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में उर्दू की आला तालीम का पूरा इंतज़ाम किया जाए। लेकिन इस वक्त उर्दू यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में उर्दू की सूरत हाल बहुत नागुफ्ता भी है। जितनी सीटें हैं उस सीटों के मुकाबले में दाखिले बहुत कम होते हैं। यानी अगर कहीं 40 सीटें हैं तो 20 तलबा का दाखिला होता है, तलबा बहुत कम आते हैं। तलबा कम आते हैं, ये एक बड़ा वजह है। अच्छा, इम्तियाज अहमद करीमी साहब, इस प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट को क्या आप लोग दीजिएगा? क्या मतलब लाहे अमल मुरतब जब करेंगे तो क्या बुनियादी सवाल जो है हुकूमत के सामने आप लोग रखेंगे, हुकूमत उस पर काम करे आगे? उर्दू की तरक्की के लिए यहाँ से जो बातें निकल कर के आएंगी वो तजवीज़ एक जगह जमा करके हम लोग ये रिकमेंडेशन हर साल सरकार तक पहुँचाते हैं। और सरकार से अगर हम लोग कोई ऐसी मांग रखते हैं कि जो पूरा हो सके तो उस पर सरकार गौर करती है। और सरकार के यहाँ फंड की कोई कमी नहीं है, सिर्फ तरीके से मांगने वालों की कमी है, तरीके से समझाने वालों की कमी है, तरीके से तजवीज़ देने वालों की कमी है। महफूज सवाल ये है कि तरीका सिर्फ उर्दू वालों के लिए ही क्यों? दूसरी जबानें हैं, दूसरे जो है मदारिस हैं, दूसरे स्कूल्स हैं, उनके लिए तरीके अलग हैं, फिर उर्दू के लिए मसले क्यों?
उर्दू वालों को मांगना क्यों पड़ता है सरकारों से? देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल जो है जिलानी साहब कर रहे हैं कि उर्दू वाले को मांगना क्यों पड़ता है। आपने कहा तरीके बेहतर होने चाहिए, तो सिर्फ उर्दू वाले ही तरीके अपनाएं, उर्दू को ही मांगना पड़े, या हुकूमत खुद जो है इस सिलसिले में कुछ पेशकदमी कर सकती है? नहीं, मांगना तो पड़ेगा, मांगने के लिए आगे आना चाहिए। और ये डेमोक्रेसी है, ये बज़्म में है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बरकत खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का। मांगना पड़ेगा, लेकिन सवाल जिलानी यहाँ ये भी है कि उर्दू एकेडमी तहलील है, हुकूमत जो है उस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कई महीने से तहलील है। उर्दू एकेडमी भी उर्दू के फरोग का काम करती है, लेकिन वो तहलील है, इसके ऊपर जो है संजीदगी से कभी सोचा नहीं जा रहा है। बिहार में आधे स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं है, इस पे गौर नहीं किया जा रहा है। वजीर तालीम बार बार यकीन दहानी कराते हैं कि उर्दू के असातिज़ा की बहाली करेंगे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बिहार को यह कहा जाता है कि उर्दू आज यहां जिंदा है, उर्दू बोली जाती है, बिहार में अखबार पढ़े जाते हैं, उर्दू रसाइल पढ़े जाते हैं और उर्दू वाले हैं, उसी बिहार का वजीर आला हर प्रोग्राम में यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं उनके पास उर्दू के, कि वो जो है टीचरों के पोस्ट पे वो बहाली कर सकें, इसीलिए स्कूलों में असामियां बरसों से खाली है। तो अपने आप में यह हैरान करने वाली बात है। अगर बात वाकई में सही है कि उम्मीदवार नहीं है, तो फिर मुहिब्बान उर्दू के इस सवाल पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या मुहिब्बान उर्दू सिर्फ सियासत कर रहे हैं, या उनका सवाल वाकई में वाजिब है, जायज है और सही है? आपने उठाया है महफूज, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि जो तंजीमें हैं क्या वाकई वो नुमाइंदगी करती हैं सरकारी सतह पर? यह बड़ा सवाल है उन तमाम तंजीमों का जो फरोग उर्दू के दावे करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।